Hello student, welcome back to again from online classes of Shantiniketan Public School. Today I am continue the first chapter of your English Behave book. Today I am continue. प्रीवियस क्लास में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था द एलिंग प्लानिट बताया था मैंने कि देखिए एलिंग मीन्स बीमार एंड प्लानिट मीन्स ये जो हमारा अर्थ के लिए यूज किया गया है, अर्थ वो क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है. Now let us start the chapter. Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind share the earth. Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biological reckon that about 3 to 800 millions over living species still languish unnamed in ignominious darkness. देखिए वैज्ञानिक 1.4 मिलियन जीवन प्रजातियों की सूची बना चुकी है, जीवन प्रजाति की सूची बना चुकी है जो धरती को मानव के साथ बांटती है. कि देखिए कि मानव भी है और भी उसके साथ कई प्रजातियां हैं. यह अनुमान अलग अलग है क्योंकि बहुत सी जैविक प्रजातियां अभी सूचीबद्ध नहीं हुई हैं. देखिए कि बहुत सी भी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि अभी जिनके बारे में पता ही नहीं है. And biological reckon that about 3 to 800 million other living species. और जीव वैज्ञानिकों का अनुमान है, वो गैस कर रहे हैं कि 3 से 100 जीव मिलियन अन्य जैव प्रजातियां बिना नाम से अंधेरे में पड़ी हुई हैं. मीन्स अभी जो क्या है कि देखिए 100 जीव मिलियन अन्य प्रजातियां, जो अन्य प्रजातियां हैं वो भी क्या है, बिना नाम से अंधेरे में पड़ी हुई हैं. मीन्स उनकी अभी पता नहीं चल पाया है. मीन्स अब तक क्या हुआ है कि 1.4 मिलियन प्रजातियों की जो सूची बन चुकी है, लेकिन 3 से 100 मिलियन अन्य भी अभी क्या है, अभी विलुप्त है, पता ही नहीं उनके बारे में, अननोन है वो. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandeis Commission, which had distinguished India as one of its members. Mr. L. K. Jha, the first Brand report raised the question: Are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert, improvements, landscape and ailing environment? देखिए वन ऑफ द early international commissions, शुरू के अंतर्राष्ट्रीय आयोगों इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जो अन्य मामलों के साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रश्न से संबंध रखते हैं, में से एक ब्रांड आयोग है. में से क्या है, एक ब्रांड आयोग है जिसके एक प्रसिद्ध भारतीय मिस एल के झा सदस्य, वो क्या है, इसके मेंबर है. पहली ब्रांड रिपोर्ट ने प्रश्न उठाया, क्या क्वेश्चन था कि आर वी टू लीव अवर सक्सेसर ए स्कॉच प्लानेट ऑफ एडवांटेज डेजर्ट, क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बढ़ते हुए रेगिस्तान, कमजोर हो चुकी धरती और बीमार पर्यावरण वाला ग्रह सौंपना है. मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारी आगे की जनरेशन है, उसको एक बढ़ते हुए रेगिस्तान, कमजोर हो चुकी धरती और बीमार पर्यावरण वाला ग्रह सौंपना है. माइंड मीन्स देखिए कि जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और आगामी समय में क्या होगा, और प्लानिट भी क्या हो रहा है, मतलब पॉल्यूटेड हो रहा है. तो वो ये कह रहे हैं कि क्या हम ऐसा ग्रह देंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर बना देंगे जो कैसा होगा, बीमार. Mr. Lesser R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect point out that the Earth's principal biological system are four: fishery, forest, grassland and croplands, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide fertility, all of the raw materials for industry, expect minerals and petroleum derived synthesis in large area of the world. Human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fissures collapse, forests disappear, grandlands are converted into barren wasteland, and croplands detroits in a pollution conscious and protein hungry world
Our fishing is common every day in poor countries. Local forests are being decimated in order to produce firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the power hours of evolution, several species of life fix extinct as a result of its destruction. देखिए, मिस लेस्टर आर ब्राउन उनकी विचारपूर्वक पुस्तक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में संकेत करती है कि पृथ्वी को जैविक प्रणालियाँ 4 हैं। पृथ्वी की जो जैविक प्रणाली है वो कितनी है? 4। समुद्री जीव, वन, घास के मैदान और कृषि भूमि। ये क्या है? ये क्या है? पृथ्वी की जैविक प्रणालियाँ। एक तो समुद्री जीव, वन, घास के मैदान और कृषि भूमि, और वे भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के आधार है। हमारा भोजन उपलब्ध करवाने के अलावा ये 4 सिस्टम खनिजों और पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर उद्योगों के लिए भी वास्तविक कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि देखिए, मैदानों से ही क्या निकलता है? मिनरल्स वगैरह मैदानों से निकलती हैं। समुद्र से भी पेट्रोलियम वगैरह जो समुद्र में ही पाया जाता है। तो ये क्या कराते हैं? कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। संसार के बहुत बड़े भाग पर इन प्रणालियों पर मानव का दावा विनाश के स्तर तक पहुंच चुका है। एक ऐसा बिंदु जहां पर उनकी उत्पादकता अपंग हो रही है। जब यह होता है तो मछली उत्पादन गिर जाता है, वन लुप्त हो जाते हैं, हरे घास के मैदान बंजर जमीन में बदल जाते हैं और कृषि भूमि का ह्रास हो जाता है। प्रोटीन के प्रति सचेत और प्रोटीन के भूखे संसार में जरूरत से अधिक मछली उत्पादन रोज की आम बात है। गरीब देशों में स्थानीय जंगलों का खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी के लिए सफाया किया जा रहा है। कुछ जगह पर तो लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि बर्तन के नीचे की चीज़ बर्तन के अंदर से अधिक महंगी है। डॉक्टर मिया के शब्दों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन विकास के लिए ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए इनके विनाश के परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने का सामना कर रही हैं। It has been well said, the forest proceed mankind desert follow the world's ancient patrimony on tropical forests is now eroding at the rate of the 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives dead soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rates of the forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year of 2000. देखिए, इट हैज़ बीन वेल सेड, यह ठीक ही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कि फॉरेस्ट वन जंगल प्रीकीड मैनकाइंड मानव से पहले आए, एंड डेजर्ट फॉलो, और जो डेजर्ट है वो कब आए? बाद में। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year। और संसार में जो देखिए उष्णकटिबंधीय वनों की प्राचीन विरासत 40-50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और जलाने के लिए गोबर की बढ़ती मांग धरती को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित करती है। कि जैसे देखिए कि जो डंग होता है उसका यूज हम किस में कर लेते हैं? जलाने के लिए कर रहे हैं। तो इससे क्या है, अगर वो डंग का यूज जलाने में न किया जाए तो वो जो डंग होता है वो क्या बन जाता है? मैन्योर खाद बन जाता है। तो इससे क्या होता है, जो प्राकृतिक खाद है वो बनता है डंग का, लेकिन हम उसका यूज क्या में कर रहे हैं? जलाने में कर रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, जो विश्व बैंक है उसका अनुमान है, दैट ए 5-fold इंक्रीज द रेट ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। विश्व बैंक का अनुमान है कि सन 2000 में अनुमानित जलाऊ लकड़ी की मांग का सामना करने के लिए वन लगाने की दर में 5 गुना बढ़ोतरी करने की जरूरत है। मीन्स जो सन 2000 है उसमें क्या है कि लकड़ी की मांग के लिए कम से कम क्या करना है? 5 गुना बढ़ोतरी, जो वन लगाए जा रहे हैं उसमें क्या करना है? 5 गुना बढ़ोतरी करने की क्या है? आवश्यकता है। जेम्स स्पे, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, said
the other day we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स स्पेथ, देखिए जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि देखिए जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसके क्या है प्रेसिडेंट हैं, सेड द अदर डे, ने कुछ दिन पहले कहा, वी वर सेइंग, हम कह रहे थे कि दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, कि हम एक सेकंड में 1 एकड़ की दर से वनों को खो रहे हैं। मीन्स वी वर सेइंग दैट वी वर लॉसिंग, हम खो रहे हैं द फॉरेस्ट मीन्स जंगलों को एट एन एकड़ ए सेकंड, 1 एकड़ 1 सेकंड में क्या हो रहे हैं, वन लॉस हो रहा है उनका। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकंड, परंतु यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास है। Article 40A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। देखिए आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A क्या कहता है कि यह एक प्रावधान करता है, आर्टिकल 48 वो क्या करता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि राज्य पर्यावरण को बचाए, स्टेट शैल एंडेवर बचाए, जो स्टेट है वो क्या करे, एनवायरनमेंट को सेव करे और अच्छा करने का प्रयत्न करेगा। जो 48A आर्टिकल है वो क्या कहता है कि जो स्टेट है वो एनवायरनमेंट को बचाने का, प्रोटेक्शन करने का और उसकी प्रोटेक्शन करने का क्या करेगा, देख रेख करेगा, प्रयत्न करेगा और देश के जंगलों और वन्य जीवों को बचाने का प्रयत्न भी करेगा। और जो जंगलों में वन में जो एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनकी भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ये क्या कहता है आर्टिकल 48A। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एग्नेस इन द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्ट नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, परंतु जो दुख का कारण है वह यह तथ्य है कि कानून भारत में न तो माने जाते हैं और न ही लागू किए जाते हैं। जो लॉ हैं तो न तो उनका कोई फॉलो करता है और न ही उनका इम्प्लीकेशन होता है। फॉर इंस्टेंस द कंस्टिट्यूशन से द कैटेगरिज्म अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेज लेबर सेल कॉन्स्टिट्यूशन, उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी खत्म हो, परंतु वे बिना श्रम के संविधान के लागू होने के 44 बाद भी फल फूल रही हैं। मीन्स देखिए जो अनटचेबिलिटी का संविधान में क्या है कि ये कहा गया है कि अब कोई मतलब भेदभाव नहीं करेगा छुआछूत का, लेकिन फिर भी आज भी स्वतंत्रता के बाद भी आज भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मीन्स ये राइटर ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि जो चीज़ आर्टिकल में भी लिखी है, हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी लिखी है, लोग उनका भी फॉलो नहीं करते। A recent report of our Parliament Estimate Committee has highlighted the near of India's forest over the last 4 decades। हमारी संसदीय आकलन समिति की हाल ही की रिपोर्ट ने भारत के वनों को पिछले 4 दशकों के दौरान हुई विनाशकारी कमी पर प्रकाश डाला है। संसदीय आकलन समिति ने क्या किया है कि भारत के वनों की पिछले 4 दशकों के दौरान हुई विनाशकारी कमी पर प्रकाश डाला है कि देखिए 4 दशक पहले वनों की कंडीशन क्या थी और अब की कंडीशन क्या है, कि तब क्या था और अब क्या है। इंडिया अकॉर्डिंग टू ए रिलायबल डाटा इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, और आंकड़ों के अनुसार भारत 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से अपने वनों को क्या कर रहा है, खो रहा है। देखिए ग्रेट लॉस है, ये क्या है, ग्रेट लॉस है कि 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से भारत अपने वनों को क्या कर रहा है, खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एस्टिमेट टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और देखिए वनों के वास्तविक विनाश का अनुमान सरकारी सांख्यिकी द्वारा दर्शाई गई दर से क्या है, 8 गुना अधिक है, 8 fold। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको
वेब का पार्ट सेकंड क्लियर कराया। कल मैं आपको उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।